Hi everyone, Ashish Kyal here, and this is a very quick short video for today. Market में बहुत ज्यादा fall sell off हमने देखा. What happened is Nifty opened gap down by 500 points and post that it consolidated, and then in the final hour the selling pressure continued. Nifty tested crucial 22,950 levels, managed to close back above it. 22,950 is a very important level because that is within the cycle zone, the final level within the cycle zone जिसके नीचे निफ्टी क्लोज नहीं करना चाहिए. अगर उसके नीचे क्लोज हो जाता है तो अगेन द सेलिंग प्रेशर विल इंटेंसिफाई. नाउ व्हाट इज द पैटर्न एज पर नियोवेव गोइंग ऑन. और करना क्या है, और अगर आपने देखा होगा मैंने आज ट्वीट भी किया था, एंड इफ दोज ट्वीट्स एंड शॉर्ट वीडियोस आर यूजफुल फॉर यू ऑल, देन डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन योर कमेंट्स, रीट्वीट करो, and let me know if these videos are helping you to take the trade. सो मॉर्निंग में बहुत क्लियरली मेंशन था कि निफ्टी अगर 23,370 का लेवल ब्रेक करेगा, द सेलिंग प्रेशर विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. निफ्टी ओपन ही वहां पर हुआ, एंड देन वी हैव नॉट सीन एनी काइंड ऑफ पुल बैक एंड द प्राइसेस कंटिन्यू टू सेल ऑफ. बैंक निफ्टी एंड साथ ही में एचडीएफसी बैंक ने और तड़का लगा दिया, जहां पर वी कैन सी द चेयरमैन रिजाइंड, एंड दैट्स नॉट अ गुड न्यूज. समथिंग इज देयर, दैट्स व्हाई समवन इज रिजाइनिंग दैट वे, and that too without any clue. So it's very, very important that market is in pain, and only scalping is going to work in this market. Levels are also working very well, and you do not have to carry the positions overnight. अगर overnight कर रहे हो, just carry hedge positions, create very little hedge positions and carry that. That is very, very crucial. You have to understand that. And यहाँ पर I'm going to share across my screen here, and we are going to look at what's going to happen with Nifty, what's the indicator suggesting, how are we going to move from here on. ये सारी चीजों के बारे में बता रहा हूँ. But before I do that, I want to know, are these videos useful? Are you understanding it? Are the morning tweets useful? Are you checking it? If yes, then I need those retweets. If you're watching on Twitter, I need you to at least put down comments on YouTube, तो पता चले मुझे. लेट मी जस्ट शेयर अक्रॉस माय स्क्रीन हियर. और गोल्ड के ऊपर भी मैंने कल व्यू रखा था. दैट व्यू यू माइट हैव सीन हैज वर्कड ब्रिलियंटली वेल. आई मीन, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है अभी, गोल्ड और सिल्वर पे जो फॉल आ रहा है, लुक एट दैट फॉल 2.76% गोल्ड पे. आई हैव बीन टेलिंग यू इट्स अ ट्रैप, डू नॉट बाय, डू नॉट बाय. अगर आपने सुना होगा तो समझा होगा. सिल्वर पे देखो, crazy. It is completed wave 2, and possibly the third wave is starting on gold and silver. Precious metal is not a buy. Interestingly, if I look at crude oil, despite of so many events happening where the pressure is building up across Gulf areas, crude oil is not going up. सभी लोग बोल रहे क्रूड ऑयल डबल हो जाएगा. ईरान बोल रहे मैं क्रूड ऑयल $200 कर दूंगा, लेकिन क्रूड ऑयल को फर्क ही नहीं है. यार, अगर ऐसे एक कंट्री कह के डॉलर 200 कर सकती है क्रूड ऑयल को, तो यार ट्रम्प तो कभी भी बोल देगा मैं डाउ जोन्स को 1 लाख कर दूंगा अभी. सो market does not move that way. Okay, market moves basis of demand and supply. It's not only supply disruption that is happening, it is also demand disruption. वो कोई बात ही नहीं कर रहा. सो सप्लाई खाली बंद हो गया, एग्रीड टू सम एक्सटेंट, जितनी नेसेसिटी है वो होगा, लेकिन उस कारण से जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एंड दैट्स द रीजन स्टॉक मार्केट्स आर रिएक्टिंग, बिकॉज ऑफ द डिमांड डिस्ट्रक्शन वी आर सीइंग. And that's why crude oil and the money is flowing out, the liquidity crunch hai, and it's not only because of the war. One major factor that everyone else is forgetting is that US needs to give back $175 billion, and that is squeezing out liquidity from everywhere. And that's the reason, look at crypto, look at Bitcoin, look at gold, look at silver, everything is collapsing, and that is what you can clearly see. And dollar index, if you look at dollar index weekly time frame chart, डॉलर इंडेक्स इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग आउट. डॉलर ऊपर जाएगा कमोडिटी के लिए अच्छी साइन नहीं, एंड क्रूड ऑयल के लिए भी अच्छी साइन है. सो आप बोलोगे क्रूड ऑयल नीचे जाएगा तो हमारा मार्केट बढ़ेगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है दोस्त. डिमांड डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है सप्लाई के साथ, एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन. सो कमिंग बैक टू निफ्टी, इफ यू वांट आई कैन टॉक मोर अबाउट दिस इंटर मार्केट लिंकेजेस, लेकिन आपको नीचे लिखना होगा. डू यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस थिंग्स? How is dollar linked with commodity, with oil is linked with gold, gold is linked with equities? ये सब लिंक क्या है, कैसे चलता है ये सारी चीजें ग्लोबली? हाउ इज मनी फ्लोइंग अक्रॉस द ग्लोब?
इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट नीचे कमेंट में डालिए, तो आई विल मेक मोर सच वीडियो अबाउट इट. इट्स मोर ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग दैट. अभी यहां पर अगर हम वीकली चार्ट पे देखें, गड़बड़ है मार्केट में. वीकली रिजेक्शन बहुत बड़ा आया है, वापस से अटेम्प्ट हुआ लेकिन रिजेक्शन आया. सो द ट्रेंड रिमेन्स बेरिश. वी आर इन अ डाउन ट्रेंड. डू नॉट ट्राई टू कैच अ टॉप हियर. दिस कंप्लीटेड वेव ए, वी आर इन वेव बी विच इज गोइंग ऑन एज ऑफ नाउ. यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, वेव बी ऑन गोइंग है. If I go back on the daily time frame chart, you can see that Nifty is at a very important 22,950 level. बहुत ही crucial level है. If we close below it, this entire 54, 55 day cycle का low will be broken. We are already out of the zone and the low will be broken. From here, we got 800 points pullback, which was brilliant. And now we have given away everything in one day. That's not a good sign, which means overall नीचे का ट्रेंड. आवरली चार्ट पे जाके इंटरनल काउंट्स देखते हैं. सो व्हाट इज द डेली वेव थियरी सजेस्टिंग? वी कंप्लीटेड वेव जी ऑन द टॉप. दिस एंटायर राइज का लेग खत्म हुआ. वी आर फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ WX and Y correction which is currently ongoing. We have retraced more than 61.8%. retracement देखते हैं. FIBO retracement of this entire rise. If you look at the FIBO retracement of this entire rise, we have retraced more than 61.8% of the move. So weekly trend पे अगर हम देखेंगे, so we have already broken important supports. 22,950 is the level which is crucial that we have to check. Now I'll come to 1 hour time frame chart. 1 hour time frame chart के लिए मेरे लिए ये crucial level है. तो क्या हमें कल बेचना है? नहीं. रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरिंग दैट. पुल बैक पे बेचेंगे, या तो पुल बैक पे बेचना है या वेट कर. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वेरी वेरी क्रूशियल. यू हैव टू लुक एट दिस ओवरऑल, एंड इफ आई अप्लाई अ सिंपल से इंडिकेटर लाइक एन RSI, नीचे जो मैंने लगा रखा है वो KST है. KST वो देख रहे हैं हम RSI. So we can see this was oversold. We are still in the area. This is not a positive divergence. Please keep that in mind. Many people see this, अरे positive divergence. नहीं, ये positive divergence नहीं है unless we see a price action back. For stability, Nifty needs to move back about 23,480. 430 से 420 से 480 का जो लेवल है, Nifty needs to move back about this area. That's 23,400. इसके ऊपर जाना है हमें, तब जाके थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी. उसके ऊपर नहीं जाते हैं, पुल बैक आता है, यूज पुल बैक टू सेल अगेन. इज दैट क्लियर? सो वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट ओपनिंग टुमारो. इट्स गोइंग टू बी अ क्रूशियल ओपनिंग. इतना गिरने के बाद इज देयर एन अटेम्प्ट टू गो अबाउट दिस लेवल और नॉट? जस्ट इन द ओपनिंग आवर कोई अटेम्प्ट नहीं हो रहा है सेल का. If we managed and attempted to cross that 23,400 mark, तब जाके देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में क्या करना है. मैं एग्जैक्ट लेवल मॉर्निंग के ट्वीट में डाल दूंगा. फिलहाल के लिए वेव पैटर्न क्या है? दिस वाज X, वी कंप्लीटेड वेव A हियर, वी कंप्लीटेड वेव B हियर, दिस वाज C, दिस इज T, दिस वाज वेव E, वी कंप्लीटेड F एंड दिस इज ऑनगोइंग वेव G. एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पर बताऊं मैं. The most important thing that you should be aware of is that from this level, if you look at it, each fall has been almost equal. So if you're looking at from this point, ye fall tha, okay, I'm taking a duplication of this. Look at this fall, equal. Look at the next fall, थोड़ा सा ओवरशूट हुआ स्पाइक में, लेकिन इक्वल. तो मतलब इक्वालिटी, दिस इज ब्रिलियंट, राइट? Each fall is getting equal, which gives me the target. अगर मुझे देखना है, यहां से मैं नीचे ले लेता हूं इसे. ये लेवल, ये लाइन देखो मैंने बना रखी है ऑलरेडी 22,690, 22,660 तक. सो व्हाट इज द टारगेट? 22,660. क्लासिक पैटर्न है. हर एक फॉल देखो ना, क्या सिस्टमैटिक वे से मार्केट ने दिया है. डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग इवेंट, द लेवल्स आर वर्किंग लाइक मैजिक. इफ यू नो हाउ टू डिराइव इट, इफ यू नो हाउ टू डू इट. हम कल ब्रह्मास्त्र में कर रहे थे. एक एक मूवमेंट देखो, इक्वालिटी है.
इंटरेस्टिंग चीज क्या है मालूम है इसमें? जो राइज है, दिस राइज वॉज स्मॉलर, दिस राइज वॉज बिगर, दिस राइज वॉज मच बिगर, सो द राइज इज मोर, फॉल इज इक्वालिटी. बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है. इट्स एन एक्सपांडिंग काइंड ऑफ अ पैटर्न. दिस इज नोन एज एक्सपांडिंग पैटर्न. Okay, so it still looks like diametric to me rather than an expanding symmetrical triangle kind of pattern. It still looks like diametric. तो देखते हैं, फिलहाल हम जी में है, which means we are nearing that completion of a pattern, nearing. लेकिन diametric patterns can get extended. मैं उसके बारे में बात करूंगा. पहले तो मुझे देखना है कल की ओपनिंग क्या है. अगर मार्केट कल ओपन 22,950 के नीचे दे देता है, 22,660 मेरा टारगेट है. इफ वी मैनेज टू मूव अबाउट 23,400, तब जाके बेसिक थोड़ा सा बेस बनेगा वहां. सो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट इट एंड दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इन द मार्केट. एग्जैक्ट लेवल में मॉर्निंग में ट्वीट करूंगा. तो दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आ रहे वीडियोस और यू आर एंजॉइंग दीज काइंड ऑफ लेवल्स डिस्पाइट ऑफ द इवेंट एंड इट्स वर्किंग फॉर यू, आई नीड दोज commitment from you by way of comment and retweets, so that I know it's working. And साथ ही में सैटरडे मास्टर क्लास करें क्या ये, where we will look at time cycles, we'll look at Elliott wave also this time. ये मैंने नियो वेव पैटर्न बताया, बट प्योर एलियट वेव पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं वो क्लास करूंगा. मास्टर क्लास सैटरडे को 11 बजे, लिंक नीचे है, जाके वहां रजिस्टर करिए. इट्स गोइंग टू बी हैपनिंग एक्सक्लूसिवली ऑन जूम प्लेटफॉर्म. अगर आप जूम पे नहीं जुड़ोगे तो मिस आउट होगा. 10 मिनट पहले ज्वाइन करना. वी विल लुक एट सिंपल प्राइस एक्शन मेथड्स, फोरकास्टिंग यूजिंग टाइम साइकिल्स एंड कंबाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एलियट वेव के साथ क्या लग रहा है, सिंपल एलियट वेव के साथ क्या लग रहा है. ये सारी चीजों को कंबाइन करके मैं 15 मिनट चार्ट पे आपको दिखाऊंगा वेव पैटर्न, और फिबोनाची प्रोजेक्शंस कैसे करना है, 15 मिनट चार्ट पे सिग्नल कैसे लेना है. सो यू हैव टू गो डाउन एंड रजिस्टर योरसेल्फ. नीचे लिंक दी गई है वहां पर. एंड जाते जाते दोस्तों, वेरी क्विकली अ क्विक डिस्क्लेमर, वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. मैं शेयर कर देता हूं. एंड यहां पर मार्केट ऊपर चाहे नीचे चाहे डरना नहीं है, फियरलेस बनना है, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करना है, डू नॉट एवरेज योर लॉसेस. रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स दैट आई एम सेइंग इट अक्रॉस टू यू. Okay, this is a quick disclosure. Keep this in mind. We are SEBI registered research analyst. Investment in securities market is risky. Registration granted is no way guarantee of performance. And registration details and disclosure is here. Thank you very much for listening me out. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off.